Hello dear students. In this lecture we are going to see about the Maxam-Gilbert sequencing. Maxam-Gilbert sequencing method, it is used to sequence the DNA to identify the arrangement of nucleotides in the DNA. It is a classical method of DNA sequencing developed by the scientist Maxam Gilbert. Okay, so they developed it, hence the name is given Maxam Gilbert. So it is the old or classical method to sequence the DNA. It was developed in the year between 1976 1977, and the principle of this method, it depends on the cleavage of DNA at specific site by using chemical. That is just principle of Maxam Gilbert sequencing. यहाँ पर क्या होता है, the DNA is been cut by using different chemical at specific base. Okay, तो एडेनाइन कट करने के लिए, एडेनाइन क्लीव करने के लिए डिफरेंट केमिकल यूज किया जाएगा, ग्वानाइन क्लीव करने के लिए डिफरेंट केमिकल यूज किया जाएगा. सो बाय यूजिंग केमिकल वी क्लीव द DNA at specific site. So that is the principle of Maxam Gilbert sequencing. If we see the protocol, yes, the chemicals which I told, तो ये केमिकल्स कौन से हैं? डाईमिथिल सल्फेट, इट इज यूज टू क्लीव द न्यूक्लियोटाइड ग्वानाइन. ओके, तो अगर हमें ग्वानाइन क्लीव करना है डीएनए स्ट्रैंड में, तो वी कैन यूज द केमिकल और रिएजेंट कॉल्ड डाईमिथिल सल्फेट DMS फॉलोड बाय द पिपरिडिन. ओके, इसके साथ हम पिपरिडाइन भी यूज कर सकते हैं. सो डाईमिथिल सल्फेट फॉलोड बाय पिपरडाइन और पिपरिडिन. सो हाउ डज इट एक्ट, ये कैसे क्लीव करता है? इट क्लीव्स एट कार्बन 8 and 9 पोजिशन. सेकेंड, इफ वी वॉन्ट टू क्लीव एडेनाइन एंड ग्वानाइन, मतलब मेजरली एडेनाइन. ओके, मेजरली दिस पिपरिडाइन इट क्लीव्स द एडेनाइन और माइनरली ये क्लीव करता है ग्वानाइन. ठीक है, तो मेजरली एडेनाइन और लेस अमाउंट में ग्वानाइन. एंड हाउ इट क्लीव्स इट? बाय वीकनिंग, और इट वीक्स द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ एडेनाइन एंड ग्वानाइन रेसिड्यू. ठीक है, ये जो एडेनाइन और ग्वानाइन रेसिड्यू में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसे वीक करता है. एज द बॉन्ड गेट्स वीक, it gets break. Okay, so by using piperidine format we can cleave the adenine base and in the minor form guanine base. Next chemical is hydrazine. Hydrazine is used to cleave cytosine majorly and thymine minorly. Okay, large amount में ये cytosine break करता है and in lesser extent it breaks the thymine. How it breaks this? It opens the pyrimidine ring and as the ring is been opened, the bond or the nucleotide base gets cleaved. If we want to break cytosine from the, or if we want to remove cytosine from the DNA strand, we use the chemical hydrazine in combination with 1.5 molar NaCl. Okay, so it breaks the cytosine and cytosine has the ability to react with the hydrazine and cleave itself. Okay, so these are the bases and chemicals. तो ये chemicals use करके base हम remove कर सकते हैं from the DNA strand. Okay, so this is the simple method to understand and to work out. So there is cleavage at certain nucleotide at certain base like guanine, AG, cytosine and thymine. तो ये DNA सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में एक स्पेसिफिक साइट पे ये ब्रेक करता है by using different chemicals which we have discussed now.
Now, what is the protocol for this Maxim Gilbert sequencing? So, protocol starts from here. We have double stranded DNA. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम डीनेचर करेंगे बाय हीटिंग ट्रीटमेंट एट 90 डिग्री सेल्सियस, और वी विल यूज डाइमिथिल सल्फर टू ब्रेक दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और वी कैन इंक्रीज द पीएच. तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिसके वजह से हम ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, so this double stranded DNA is denatured to obtain the single stranded DNA by heating treatment or by chemical treatment. After obtaining the single strand DNA में कुछ इस तरीके से सीक्वेंस प्रेजेंट है, GCTACGTA. Okay, so this is the sequence present at single stranded DNA. वी कैन चूज एनी वन ऑफ दी स्ट्रैंड. ठीक है, कोई भी एक स्ट्रैंड आप चूज कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोटोकॉल, सेम लाइक दैट सैंगर्स मेथड. सो आफ्टर ऑब्टेनिंग द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वी रेडियो लेबल दैट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट 5 प्राइम एंड. ठीक है, 5 प्राइम एंड में हम लेबल करते हैं. सो बाय यूजिंग द काइनेस एंजाइम. Kinase, this enzyme helps in the addition of phosphate group. So by using the kinase enzyme, we label that DNA at 5 prime end by 32 phosphate. It is the radioisotope. ठीक है, ये क्या है, रेडियो आइसोटोप है. हम क्यों लेबल कर रहे हैं इसे? जस्ट टू डिटेक्ट, जब हम इसका रेडियोग्राफी करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो बैंड्स विजुअलाइज होने के लिए, बैंड्स आइडेंटिफाई होने के लिए वी यूज द रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फेट. ओके, सो एट द 5 प्राइम एंड वी एड द 32 phosphate which is radioactive molecule at the 5 prime end by using the enzyme polynucleotide kinase. Okay, so after labeling of this single stranded DNA with 32 phosphate at 5 prime end, further we add this single stranded DNA into 4 different tubes. हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 4 अलग ट्यूब्स में ऐड करते हैं इन इक्वल अमाउंट. ठीक है, सो आफ्टर एडिशन ऑफ दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू 4 डिफरेंट ट्यूब्स, सो दिस इज ट्यूब 1 which is named as A plus G, this is tube 2 that is G, tube 3 that is C, tube 4 that is C plus T. Okay, so 4 different tubes में हम ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐड करते हैं. Now what actually happens in this tube? हमने सबसे पहले हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐड किया है into each tube. After that, in the first tube, we have added the chemical called dimethyl sulfate followed by piperidine. Okay, तो हमने पहले ट्यूब में, पहली ट्यूब का नाम आप ट्यूब 1 भी दे सकते हैं, or you can give A plus G, any. Okay, so in the tube first, we have added the chemical dimethyl sulfate followed by piperidine. अब 2 कंपोनेंट से फर्स्ट ट्यूब में, पहला तो है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सेकेंड है हमारा केमिकल डाइमिथिल सल्फेट फॉलोड बाय पिपरिडिन. अब उस ट्यूब में क्या रिएक्शन होगी? व्हाट विल बी द रिएक्शन इन दैट ट्यूब? सो द रिएक्शन विल बी लाइक दैट. वी नो दैट दिस डाइमिथिल सल्फेट एंड पिपरिडिन इट क्लीव्स द ग्वानाइन एंड एडिनाइन. ये क्या करता है? ग्वानाइन और एडिनाइन क्लीव करता है. इन लार्जर अमाउंट इट क्लीव्स दी ग्वानाइन, बट एज यहाँ पर हम पिपरिडिन भी ऐड कर रहे हैं तो ये एडिनाइन को भी क्लीव करेगा. तो ये हमारी, दिस इज आवर सीक्वेंस. ओके, दिस इज आवर बेस सीक्वेंस प्रेजेंट एट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो इट विल क्लीव ग्वानाइन एज वेल एज इट विल क्लीव एडिनाइन. तो हमारे पास सीक्वेंस कैसी होती है? So we get the sequence like that. G, okay, G is there, C is there, T is there. लेकिन further nucleotide
ऐड नहीं है. ओके, तो यहाँ पर जो एडेनाइन है एट दिस साइड इट इज बीन क्लीव्ड बिकॉज दिस केमिकल क्लीव्स द एडेनाइन एज वेल एज ग्वानाइन. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल. सी, वी वांट टू सीक्वेंस द डीएनए. हमें डीएनए की सीक्वेंस जाननी है, तो हमें सीक्वेंस पता नहीं है. वी डोंट नो द सीक्वेंस, व्हाट द सीक्वेंस एग्जैक्टली प्रेजेंट onto that DNA. We don't know the sequence. We want to identify the sequence. Okay, तो ये हमें sequence कब पता लगेगी? At the last, when you will perform the electrophoresis. Okay, so at that agarose gel electrophoresis जब आप perform करेंगे, so at last you will come to know the sequence present in that DNA. तो ये सीक्वेंस सिर्फ हमने समझने के लिए लिए. ओके, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट, टू अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल वी हैव टेकन दिस सीक्वेंस. ओके, अगर हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम में इनकी सीक्वेंस पता लग जाती है, ऑटोमेटिकली वी विल कम टू नो द सीक्वेंस ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड बिकॉज दैट सीक्वेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, तो हमें एक भी स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता लग जाती है, ऑटोमेटिकली वी विल कम टू नो द सीक्वेंस ऑफ सेकेंड स्ट्रैंड बिकॉज they are complementary to each other. Okay, so just to understand what the experiment is, we have taken just random sequence. लेकिन हमें sequence पता नहीं होती है. इस experiment के थ्रू ही हम DNA में sequence कौन सी present है वो identify करते हैं. So yes, in first tube we have added the chemical this dimethyl sulfate and piperidine. It will cleave guanine as well as adenine. तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस मिलती है. सेकेंडली अब उसने पहले क्या कट किया है? इट हैज कट दी एडेनाइन. नाउ सेकेंड टाइम सी ग्वानाइन इज देयर, ग्वानाइन इज देयर, साइटोसिन इज देयर, साइटोसिन यहाँ पर भी है. ओके, थाइमिन, थाइमिन. नेक्स्ट इज एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन, साइटोसिन. बट आगे ग्वानाइन आ गया, तो यहाँ पर ग्वानाइन को इसने निकाल दिया है. ओके, इट हैज रिमूव द ग्वानाइन बेस पेयर. ओके, सो नेक्स्टली क्या है? सेम प्रोटोकॉल है. सी, जी सी टी ए सी जी टी, बट इट हैज कटेड द एडेनाइन और इट हैज रिमूव द एडेनाइन एंड द रेस्ट सीक्वेंस इज एज इट इज. तो पहला केमिकल क्या करेगा? आपके डीएनए स्ट्रैंड में से एडेनाइन और ग्वानाइन को निकाल देगा और जो रिमेनिंग सीक्वेंस है वो एज इट इज वहां पर रहेगी. ओके, नाउ सेकेंड ट्यूब. सेकेंड ट्यूब में क्या है? आपके पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड इन द सेकेंड ट्यूब यू हैव एडेड द केमिकल कॉल्ड डाइमिथिल सल्फेट. अब डाइमिथिल सल्फेट ये स्पेसिफिकली किसे निकालेगा? कौन से बेस को निकालेगा? इट विल रिमूव द ग्वानाइन फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड. ओके, तो ये ग्वानाइन को निकाल देगा. गेटिंग माय पॉइंट? इट विल रिमूव द ग्वानाइन. सो यस, सीक्वेंस इज समवॉट लाइक दैट. अब ये जो यहाँ पर ग्वानाइन है इट इज प्रेजेंट एट दी 5 प्राइम फॉस्फेट. ओके, सो यहाँ पर ये ग्वानाइन एज इट इज है. ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनाइन, साइटोसिन. लेकिन यहाँ पर जो ग्वानाइन है वो निकल चुका है. ओके, सो हियर ग्वानाइन इज नॉट देयर. यहाँ से ये सीक्वेंस रिमूव की गई है. नेक्स्ट, इन द थर्ड ट्यूब योर डीएनए सीक्वेंस इज देयर एंड इन द थर्ड ट्यूब यू हैव एडेड द केमिकल hydrazine and NaCl. Okay, so you have added the hydrazine and NaCl. हाइड्राजाइन क्या करेगा? इट विल रिमूव जस्ट साइटोसिन. तो हमारी सीक्वेंस कैसी होगी? जी, ग्वानाइन इज देयर बट हियर साइटोसिन इज बीन रिमूव्ड. तो यहाँ पर ही पहला फ्रैगमेंट हमें मिल जाता है. सेकेंड फ्रैगमेंट, दिस आर ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए. ओके, अब जब हम उसे क्लीव करेंगे, क्लीवेज के बाद ही हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फ्रैगमेंट विच जस्ट कंटेन्स द ग्वानाइन रेसिड्यू. ओके, यहाँ पर सिर्फ ग्वानाइन रेसिड्यू है. एट द सेकेंड पॉइंट यू हैव द ग्वानाइन, देन साइटोसिन, थाइमिन, एडेनाइन and here again it is been cut. Okay, so this hydrazine what it does, it cleaves the cytosine sequence and or cytosine base. And the last tube में भी हमारे पास क्या है? Fragment of the DNA as well as a chemical is there and that chemical is hydrazine.
here by mistake hydrating type हो गया है, but it is the hydrazine. So hydrazine it will cleave the cytosine and thymine, and this is the sequence what we will obtain after cleaving. Okay, ये fragments हमें मिलते हैं. Now it's time to run the agarose gel electrophoresis. Now what we will do, we will create the 4 wells. Okay, तो पहली वेल में A plus G के fragments हम ऐड करेंगे. सेकेंड वेल होगी हमारी ग्वानाइन की, थर्ड वेल होगी हमारी साइटोसिन की, एंड फोर्थ वेल होगी हमारी साइटोसिन प्लस थायमिन की. ओके, एंड वी विल लोड आवर सैंपल, फर्स्ट ट्यूब, सेकेंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब एंड दिस फोर्थ ट्यूब. सो वी विल लोड आवर सैंपल. We know the principle. Here the fragments are separated on the basis of size. Smaller fragments will move fast and larger fragments will move slowly. Okay, so that is the principle of agarose gel electrophoresis. तो यहाँ पर हमें sequence कैसे मिलती है? Here we read the sequence from bottom to top. Okay, so at first position we get the sequence. अब यहाँ पर 2 bands मिले हैं. Okay, साइटोसिन और थायमिन का भी है और साइटोसिन का भी है. सो हमें कैसे पता लगेगा कि साइटोसिन है या थायमिन है? नाउ यह C plus T हैज द बैंड, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोसिन. अब हम चेक करेंगे साइटोसिन की तरफ बैंड फॉर्म हुआ है या नहीं. तो साइटोसिन की तरफ हमारा बैंड फॉर्म हुआ है. यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, मेजॉरिटी ज़्यादा C की है, तो हमारा ये बैंड होगा साइटोसिन का. ओके, सो फर्स्ट सीक्वेंस है हमारे अननोन डीएनए जीन की. साइटोसिन इज द फर्स्ट सीक्वेंस. सेकेंड बैंड फॉर्म हुआ है थायमिन का, सो सेकेंड सीक्वेंस विल बी थायमिन. ओके, थर्ड बैंड का फॉर्म हुआ है. नाउ A plus G सैंपल है. ओके, तो कैसे पहचानेंगे एडेनाइन है या ग्वानाइन है? नाउ हियर वी नो ग्वानाइन, जस्ट वी वांट टू चेक ग्वानाइन की तरफ बैंड फॉर्म हुआ है? नहीं. अगर ग्वानाइन की तरफ बैंड फॉर्म होता तो ये हमारी थर्ड सीक्वेंस ग्वानाइन की होती, लेकिन हियर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द बैंड. सो जस्ट here in the first ladder the band is been formed, so the sequence is, or the nucleotide at the third position is adenine. Okay, coming to the fourth position, at the 2 places bands are formed. First is cytosine plus thymine and cytosine. तो यहाँ पर मेजॉरिटी साइटोसिन की है, तो फोर्थ पोजीशन में होगा हमारा साइटोसिन बेस. एट द फिफ्थ पोजीशन ऑल्सो 2 bands are formed. One is at A plus G, second is at G. Okay, तो यहाँ पर मेजॉरिटी G की ज्यादा है, so our fifth base will be guanine. At the sixth position the band is formed at the last well side, so C plus T है. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे साइटोसिन की तरफ बैंड फॉर्म हुआ है या नहीं. so there is no band formation at the cytosine side in the sixth position. Therefore, our nucleotide will be of thymine. At last, the band formation is at the first ladder or first well, which contain A plus G. So we will check that at the G side band form हुआ है या नहीं. So there is no band formation at the G side. Hence, our base will be adenine. तो इस तरीके से हमें sequence मिलती है. Okay, complementary strand की, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड की. तो कैसे सीक्वेंस है? CTA CGTA. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड. ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस डीएनए, एंड ऑटोमेटिकली हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी मिल जाती है. अगर हमें एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो वी विल कम टू नो दी second strand sequence as well. If we will see the advantage of this Maxam-Gilbert method, so first advantage is there is no premature termination due to DNA sequencing. यहाँ पर कोई चेन टर्मिनेट नहीं होती, जैसे हमने सैंगर्स मेथड में देखा देयर इज चेन टर्मिनेशन. ओके, सो यहाँ पर चेन टर्मिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता अनलेस एंड अनटिल आपका पूरा फ्रैगमेंट सीक्वेंस नहीं हुआ है, तब तक चेन टर्मिनेट नहीं होगी. नेक्स्ट इज स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कैन बी सीक्वेंस्ड.
which cannot be done with enzymatic method. Here we use chemical method, so it is also known as the, or this sequencing comes under the chemical type method. Okay, so here we don't use any type of enzyme, instead we use the chemicals. Purified DNA can be read directly. It can use to analyze DNA protein interactions. Okay, DNA protein interactions के लिए भी ये use होता है. If we will see the disadvantage, it is time consuming. It requires lot of time to add the chemicals, to run this bands onto the electrophoresis. So it is the time consuming method. As the size of the DNA increases, larger gels are required. अगर हमें ज़्यादा बेसिस सीक्वेंस करने हैं, ओके, तो हमें जेल्स भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा. So it can sequence up to 200 to 400 base pairs, but it requires lot of time plus lot of chemicals plus lot of gels. तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है. ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमारे पास, और द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड दी high throughput approaches or next generation methods like ion torrent pyrosequencing, nano sequencing is there, nanopore sequencing. तो ये सब limitations या फिर ये सब disadvantages के वजह से there is the development of next generation method. Use of toxic and radioactive chemical is hazardous. तो yes, here we use the radioactive chemicals which are hazardous, like radioactive phosphate 32 labeled phosphate. If we see the applications of overall DNA sequencing, then it is used to understand, firstly it is used to understand the nucleotide sequence, what sequence is present, what is the order of that sequence, ये हम पहचान सकते हैं. ओके, कोई भी unknown gene का, whether it is normal gene or disease gene or mutated gene, even we can understand the mutation by doing the sequencing. Plus we can use this technique in the fingerprinting, in the forensics, for the agricultural purposes. So this is all quick summary of this Maxim Gilbert method. Double stranded DNA converted into single stranded, taken 4 tubes, addition of chemicals, agarose gel electrophoresis, and then we get the sequence. So this is all about the genome or genomics, the different methods, the different techniques what we have studied up till now. I hope you might have understood. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you.